Okay, welcome back everyone. So in today's video lecture we'll be moving towards a new chapter, our next chapter, biological classification. Okay, we have completed our first chapter, the living world. So living world is all about the basic things. All you need to know is about the characteristic of living organism and some important scientist name and the naming, that is nomenclature. We call it as a binomial nomenclature. So, and some taxonomical aids, taxonomical hierarchy. That's all you need to remember first chapter. Okay, so some basic rules are there in first chapter. So today we'll be moving towards our next chapter, chapter number 2, first unit, biological classification. Okay, so say biological classification means it is a classification of various living organisms based on their characteristics, based on their habitat. So depending on various types of their characters, we classify living organisms into various kingdom. Okay, हम लोग का सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में बहुत सारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं. ओके, फॉर प्लांट्स बहुत सारा प्लांट्स स्पीसीज होते हैं, एनिमल्स में बहुत सारा एनिमल स्पीसीज होते हैं. वो सब को पर्टिकुलरली उसका कैरेक्टर्स को देख के, उसका हैबिटेट को देख के हम लोग क्या करते हैं, एक एक किंगडम में क्लासिफाई करते हैं. ठीक है, उसका नेचर को देख के, उसका कैरेक्टर्स को देख के, उसका बाहर का कैरेक्टर्स को देख के, उसका फूड हैबिटेट को देख के, सब बहुत सारे कैरेक्टर्स को देख के हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं in various kingdom. So different scientists have put forwarded different kingdom and we classify various living organisms on that particular kingdom. Okay, 2 kingdom system से लेके 6 kingdom classification तक होते हैं. 2 kingdom system of classification, 3 kingdom system of classification, 4 kingdom system, 5 and 6 kingdom classification तक साइंटिस्ट ने क्या किया, प्रपोज किया. So based on that we classify various living organisms. So in this chapter we will be discussing the classification of various living organisms. Okay, कैसे क्लासीफाई करते हैं, उसका बाहर का स्ट्रक्चर्स को देख के, उसका अंदर का स्ट्रक्चर्स को देख के, उसका फूड हैबिटेट को देख के. ओके, तो ये सब कैरेक्टर्स को देख के हम लोग पर्टिकुलर किंगडम में पर्टिकुलर एनिमल, प्लांट्स, सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल. Aristotle, the name of the scientist, he proposed for the first time 2 kingdom system of classification. So in this chapter you need to remember the kingdom system of classification, okay, along with the scientist name, and we need to discuss the characteristics of various living organisms. So Aristotle proposed 2 kingdom system of classification. So 2 kingdom system of classification को पहले कौन propose किया, एरिस्टोटल साइंटिस्ट. So we are familiar with this name Aristotle, right? एरिस्टोटल को क्या बोला जाता है, एरिस्टोटल is known as the father of biology. We have discussed in our first lecture, first class, right? Then he is also known as the father of zoology. Okay, that's you need to remember. So for the first time, सबसे पहले जो किंगडम सिस्टम को क्लासिफाई किया उसको, वो साइंटिस्ट का नाम है एरिस्टोटल. उन्होंने क्या क्लासिफाई किया, 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन उन्होंने प्रपोज किया. कौन सा देखो, let me tell you one thing. Okay, in biology
Everything is conceptual thing. In my class, my lectures, when I give you notes, my notes will be a simple notes, but it will be very effective. Okay, ज़्यादा लंबा मैं नहीं दूंगा. Okay, I'll try to clear the concept first. What happened when we clear concept, we don't have to memorize. अगर हम लोग concept clear करते हैं तो हम लोग को memorize करने का ज़रूरी नहीं होता है. Okay, we can write by our own. So in biology, don't mistaken it is a memorizing chapter. हाँ, साइंटिस्ट का नाम हो, कोई टर्म्स हो, हम लोग को बाय हार्ट करना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल इट इज़ ए कॉन्सेप्चुअल बेस्ड. ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं. ठीक है, इफ़ यू ट्राई टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग बिकम्स ईजी एंड अंडरस्टैंडेबल. जस्ट बाय हार्ट मत करना, रट्टा मत मारना. और नोट्स ऐसा लंबा लिखने का ज़रूरी नहीं है इन बायोलॉजी. ओके, बिकॉज दिस इज़ नॉट ए हिस्ट्री सब्जेक्ट, इट इज़ अ साइंस सब्जेक्ट. टू द पॉइंट में लिखना, छोटा होने से भी, बट इट शुड बी एप्रोप्रिएट. ओके, एप्रोप्रिएट आंसर. अगर टू द पॉइंट में लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा. ऐसा 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है, 3 पेजेस लिखोगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है. एक पेज में भी हो जाएगा, लेकिन इट शुड बी टू द पॉइंट. ओके, मैं सब कुछ दूंगा, जस्ट फॉलो आवर इंस्ट्रक्शन. My instruction actually, yeah. So two kingdom system of classification was first proposed by Aristotle. For the first time, he proposed plants and animal. So he gave two kingdom system of classification, that is plants and animal. So जितना भी plants है उसको plants में include किया, जितना भी एनिमल्स है उसको एनिमल्स में इंक्लूड किया. वेट, वन मोर, लेट मी राइट द एप्रोप्रिएट टर्म. एक्चुअली प्लांट्स नहीं बोल के प्लेंटी बोला था, PLANTAE, एनिमेलिया, ANIMALE, प्लेंटी एंड एनिमेली. ओके, सो ही प्रपोज टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. सो जितना भी प्लांट्स स्पीसीज है उसको सब प्लेंटी में रखा गया, जितना भी एनिमल्स स्पीसीज है उसको एनिमेलिया में रखा गया. ठीक है, एरिस्टोटल ही इंक्लूड ऑल द प्लांट्स स्पीसीज अंडर ए किंगडम प्लांटी, ऑल द एनिमल स्पीसीज अंडर द किंगडम एनिमेलिया. ओके, नाउ ही अगेन क्लासिफाई द प्लांट स्पीसीज इनटू 3 टाइप्स. ओके, ही কি কৰিলে, যিমান প্লান্ট স্পেচিছ আছে সেইখিনি আকৌ 3টা ভাগত ভাগ কৰিলে. ओके, सो ही अगेन क्लासिफाई द प्लांट स्पीसीज इनटू 3 कैटेगरीज. जो सबसे ऊपर होते हैं प्लांट, ओके, दोज हु आर वेरी टॉल, वी कैनॉट रीच अप टू दैट हाइट, दे इंक्लूड ऑल दोज प्लांट अंडर ट्रीज. So those plants which are tall in height, okay, लंबा पेड़ जितना भी होते उसको trees में include किया. Those plants where we can reach, जो हम लोग का soldier तक पहुँचते हैं, where we can reach those plants, okay, हम लोग का कंधों तक जितना भी plants पहुँचते हैं उसको वो shrubs में include किया. And those plants which are below our feet, okay, those plants which are below our feet, those plants are included under herbs. Okay, so Aristotle include all plant species under kingdom Plantae, and again he categorized plants into 3 groups. Okay, those plants which are very tall, we cannot reach up to that height, those plants are included under trees. Okay, and those plants where we can reach and which remain, okay, which are up to our shoulder, which those plants which where the height is up to our shoulder,
that plant included under shrubs, and those plants which are below our feet, that included under herbs. Understood? Okay. So two kingdom, why he called two kingdom? So ek, do, plenty and animalia, where all plants are kept under plenty, all animals are kept under animalia. Now come to animalia. The animalia, that is the animals, are categorized based on the presence, based on the color of their blood. उसका खून का कलर को देख के एनिमल्स को दो भाग में फिर से डिवाइड किया गया एरिस्टोटल ने. What's wrong with that ink? So based on the color of their blood, animals are again classified into two categories. Those animals which has a red blood, they are included under red blood animals, okay? And those animals which color are colorless, they are included under that particular animal species, okay? जितना भी एनिमल्स का खून का रंग लाल होते हैं उसको रेड ब्लड एनिमल्स में रखा गया, जैसे कि ह्यूमन हो गया, एनिमल्स हो गया, ठीक है? जो जो एनिमल्स का ब्लड कलरलेस होगा, रेड नहीं होगा, लाल खून नहीं होगा, उसको वाइट ब्लड एनिमल्स में रखा गया. फॉर एग्जाम्पल लाइक इंसेक्ट्स एंड सर्टेन एनिमल्स लाइक है जो कलरलेस होते हैं. इंसेक्ट्स का तो कलर ही नहीं होते, कलरलेस होते हैं. और कोई कोई एनिमल्स है जिसका कलर नहीं, कलरलेस होता है, राइट? फ्रॉग फॉर एग्जाम्पल, earthworm has blood, right? Red. No, earthworm do not have blood. That doesn't contain red blood cell. Okay, है कोई कोई एनिमल जिसका ब्लड लाल नहीं होते हैं, तो उसका कैरेक्टर्स को देख के एरिस्टोटल ने एनिमल्स को दो भाग में डिवाइड किया. जिसका खून लाल होते हैं उसको रेड ब्लड एनिमल्स में रखा गया, जिसका खून लाल नहीं होते हैं उसको कलरलेस नहीं तो वाइट ब्लड एनिमल्स में रखा गया. सो दिस इज द फर्स्ट classification of animals, and it was proposed by a scientist Aristotle. He proposed two kingdom, plenty and animalia, okay? And under plenty he categorized into three types: trees, shrubs and herbs. Herbs, shrubs and trees. The plant which are tall, where we cannot reach, he classified that plants into trees, and those plant species are where we can reach, which are up to our shoulder, that plants are included under shrubs. बहुत सारा एग्जाम्पल होंगे, ठीक है? इसमें एग्जाम्पल देख लेना, इम्पोर्टेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी या यू शुड नो. It's just a common sense, right? Trees, shrubs, example. Common sense use करो, example. So herbs जो हम लोग का पैरों के नीचे में रहते हैं, okay? Which are remain on the ground surface. So included under herbs. So animalia, those animals which has red color blood are included under red animals, red blood animals, and those animals which has colorless blood, which are devoid of red color, we call it the white blood animals. So they are included under that category. Understood? So these are the first classification of Aristotle. Remember one more thing. So Aristotle classification was based on the characters that he see, based on the external characters that he observed. उसका जो क्लासिफिकेशन है टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वो कैसे क्लासिफाई किया? बाहर का कैरेक्टर्स को देख के उन्होंने ये दोनों क्लासिफिकेशन प्रपोज किया, ठीक है? बाहर का कैरेक्टर्स को देख के, बाहर का मतलब वही कैरेक्टर्स लंबा छोटा वाला कलर को देख के, बाहर का कैरेक्टर्स को देख के उन्होंने दो क्लासिफिकेशन प्रपोज किया. लेकिन इसमें बहुत सारा ड्रॉबैक्स हैं ये क्लासिफिकेशन में, बाद में इसको डिस्कार्ड किया गया कि इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि whatever the characters that he placed under this
kingdom system of classification. Those characters are the characters that is he observed from outside, but अंदर में उसका सेल कैसा है, उसका मैन्युफैक्चर, उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसा है, ये सब बिना जान के क्लासिफिकेशन किया था. इसीलिए इसमें बहुत सारा ड्रॉबैक्स है, क्योंकि ऐसा भी ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे दोनों कैरेक्टर शो करते हैं. एनिमल्स का कैरेक्टर भी शो करते हैं, प्लांट्स का कैरेक्टर्स भी शो करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यूग्लेना हम लोग पढ़ेंगे, ये सब दोनों कैरेक्टर शो करते हैं. एनिमल्स का कैरेक्टर भी शो करते हैं, प्लांट्स का कैरेक्टर भी शो करते हैं. तो वो ऑर्गेनिजम्स को कहाँ रखा जाए? उन्होंने तो सिर्फ 2 ही किंगडम प्रपोज किया था. तो ऐसा ऑर्गेनिज्म भी है जहाँ पे दोनों कैरेक्टर शो करते हैं. तो वो ऐसा ऑर्गेनिज्म को कहाँ रखा जाए? इसलिए और दूसरा साइंटिस्ट ने और एक अलग किंगडम प्रपोज किया गया. ठीक है, उसको हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, इसलिए इसमें ड्रॉबैक पाए गए. ठीक है, सो रिमेंबर दिस क्लासिफिकेशन हैज़ सम ड्रॉबैक्स because the classification the characters that he placed under 2 kingdom system of classification were based on the characters that is observed from outside. Understood? But we appreciate that this was the first classification that the scientists gave us. We got some idea, okay, because of this classification. Now बहुत सारा मॉडिफाई किए गए, तो अलग अलग किंगडम प्रपोज करते रहे साइंटिस्ट. तो कौन सा किंगडम को हम लोग फॉलो करते हैं, कौन सा एक्सेप्टेड किंगडम है, उसको देखेंगे नेक्स्ट. सो फर्स्ट तो एरिस्टोटल, बट यू नीड टू रिमेंबर ऑल. ओके, सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस. देखो ये चैप्टर में हम लोग साइंटिस्ट का नाम देखेंगे और उसका क्लासिफिकेशन के साथ देखेंगे. ठीक है, सो कैरोलस लिनियस. सो वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विद दिस वर्ड कैरोलस लिनियस. He is known as the father of taxonomy and he also proposed binomial nomenclature. We have already known this, right? মই এটা কথা কওঁ, যোনবিলাকে অসমীয়া মিডিয়ামৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে প্ৰথমবাৰ. বাট তোমালোকে যেতিয়া ফাৰ্ডাৰ ষ্টাডি লৈ যাবা, যদি তুমি মেডিকেলত যোৱা, ইঞ্জিনিয়াৰিঙত যোৱা বা ডিগ্ৰীয়ে পঢ়া, তেতিয়া কি হ'ব, তোমাৰ গোটেই যি লাগে গোটেইখিনি চেপ্টাৰবোৰ নামবোৰ চব ইংলিছত মেনশ্যন কৰা থাকে, ইংলিছত লিখা থাকে, তাত আৰু অসমীয়া নাই. সো কি আমাৰ কি প্ৰব্লেম হয় অসমীয়া মিডিয়ামৰ বেচিকেলি? সো যেতিয়া সেইটো ষ্টেজত যায় তেতিয়া সব টাৰ্মছখিনি তোমালোকে ইংলিছত পাবা, লেকচাৰ্ছখিনি ইংলিছত পাবা. সো সেইকাৰণে এইটো ষ্টেজত তোমালোকে অলপ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো লোৱা. অ'কে, যোনকেইটা অসমীয়া মিডিয়ামৰ পৰা আহিছে. সো মই কথাখিনি অসমীয়াত ক'ব পাৰিম, বাট টাৰ্মছখিনি মই ইংলিছত ক'ম. অ'কে, সো তোমালোকে যদি বুজি নোপোৱা সুধিবা. সো ইয়াতে তোমালোকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰা. অ'কে, প্ৰথমবাৰ অলপ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, বাট লাহে লাহে হৈ যাব, ট্ৰেকত আহি যাব. অ'কে, সো নিজেও প্ৰেক্টিছ কৰিবা আৰু পিছত তোমাৰ হেল্পফুল হ'ব. অ'কে, সো নেক্সট উই হেভ কেৰলাছ লিনিয়াছ, scientist name. Carolus Linnaeus, he also proposed 2 kingdom system of classification. Okay, एरिस्टोटल भी 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था. कैरोलस लिनियस भी 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया गया. ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है? एरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन थे उन्होंने क्लासिफाई किया बाहर का कैरेक्टर्स को देख के, प्लांट्स का बाहर का कैरेक्टर्स को देख के, एनिमल्स का कैरेक्टर्स बाहर का कैरेक्टर्स को देख के क्लासिफाई किया गया. इसलिए उसका किंगडम में बहुत सारा ड्रॉबैक्स पाए गए. लेकिन कैरोलस लिनियस का जो किंगडम 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है
उन्होंने क्लासीफाई किया अंडर का कैरेक्टर्स को देख के, उसका सेल का नेचर को देख के, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देख के. Okay, so based on that character, he classified two kingdom system of classification. Understood? The differences is the Aristotle classification was based on the characters that he observed from outside. Lineage characters classification are the characters that he observed from inside as well as from outside also. इसलिए इसका characters को हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन को ज़्यादा प्रीफर करते हैं. ठीक है, लेकिन एरिस्टोटल ने पहले फर्स्ट टाइम दो किंगडम को प्रपोज किया, उसको याद रखना. लेकिन उसका क्लासिफिकेशन को हम लोग डिस्कार्ड किया गया है. हम लोग मतलब साइंटिस्ट लोग ने डिस्कार्ड किया गया. ठीक है, डिस्कार्ड मतलब हटाया गया. उसको फॉलो नहीं करते. टू किंगडम. ठीक है, सेम थिंग उन्होंने भी प्लेंटी और एनिमेलिया को प्रपोज किया. ओनली द डिफरेंसेस इज उन्होंने अंदर का कैरेक्टर्स को देख के माइक्रोस्कोप में ऑफ कोर्स सेल का कैरेक्टर को देख के, उसका हैबिटेट का कैरेक्टर्स को देख के ये प्रपोज किया गया टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. अंडर प्लेंटी ऑल प्लांट स्पीसीज आर केप्ट अंडर प्लेंटी, ऑल एनिमल स्पीसीज आर केप्ट अंडर एनिमेलिया. Animalia. Okay, so he observed the cell of both plants and animals. सेल का स्ट्रक्चर को देखा, सेल का नेचर को देखा, उसके ऊपर लेके दोनों किंगडम सिस्टम को प्रपोज किया, प्लेंटी और एनिमल्स को. उन्होंने क्या किया, बाहर का कैरेक्टर्स को भी देखा, साथ में साथ अंदर का कैरेक्टर्स को भी देखा. ओके, क्योंकि बाय दैट टाइम देयर वाज अ वेल डेवलप्ड माइक्रोस्कोप. लेकिन एरिस्टोटल का ज़माने में माइक्रोस्कोप नहीं थे उस ज़माने में, जो कि इनसाइड हम लोग का सेल का स्ट्रक्चर को देखे या सेल का नेचर को देखे, ऐसा माइक्रोस्कोप नहीं थे. वो उन्होंने सिर्फ बाहर का कैरेक्टर्स को देख के क्लासीफाई किया. तो प्लेंटी जितना भी प्लांट पार्ट्स है प्लेंटी में रखा, जितना भी एनिमल पार्ट्स है एनिमल में रखा गया. ठीक है, तो प्लेंटी को हम ये चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसका अलग ही एक चैप्टर है. नेक्स्ट जो चैप्टर है हम लोग का उसमें से प्लांट्स के बारे में जानेंगे. और एनिमेलिया का अलग चैप्टर ही है, एनिमल किंगडम, वो है जूलॉजी पार्ट में. उसको अलग टीचर पढ़ाएंगे तुम लोग को, जूलॉजी का टीचर. ठीक है, तो ये दोनों को हम लोग सिर्फ बेसिक चीज़ जानेंगे और बाकी जितना भी किंगडम है उसको हम लोग ये चैप्टर में देखेंगे. लेकिन प्लांटी और एनिमेलिया को ये चैप्टर में हम लोग डिटेल्स में नहीं पढ़ के अलग चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ेंगे. ठीक है, क्योंकि ये दोनों किंगडम सेपरेट चैप्टर दिया हुआ है. एनिमेलिया का एनिमल किंगडम में है, प्लेंटी का प्लेंटी किंगडम में है, प्लांट किंगडम में है. ओके, सो कुछ चीज़ जानेंगे यहाँ पे कि इन दोनों का डिफरेंसेस जानेंगे. ठीक है, प्लेंटी और एनिमेलिया का डिफरेंसेस जानेंगे, बेसिक्स थिंग्स जानेंगे यहाँ पे. प्लेंटी और एनिमेलिया का कैरेक्टर्स. पहले तो सेल वॉल. Always remember, in case of animal cell, always lacks cell wall. Animal का सेल में सेल वॉल नहीं होते हैं, लेकिन प्लांट का सेल में हमेशा सेल वॉल रहते हैं. सो इसको याद रखना. देखो यहाँ में मैं प्रेजेंट, यहाँ में एब्सेंट लिखूँगा, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा. एब्सेंट को मैं ऐसा लिखूँगा. ठीक है, प्रेजेंट को मैं ऐसा लिखूँगा. ये बायोलॉजिकल में शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, एब्सेंट को ऐसा, प्रेजेंट को ऐसा. तो तुम लोग सेंटेंस में लिखना. तो सेल वॉल एनिमल्स में हमेशा एब्सेंट रहते हैं, प्लांट्स में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं. ओके, नेक्स्ट थिंग, मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इन मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल में बोलते हैं हम लोग हेटेरोट्रोप. आई डोंट नो इफ़ यू आर फेमिलियर विद दिस वर्ड. तुम लोग स्कूल में पाए होंगे हेटेरोट्रोप्स एंड ऑटोट्रोप्स, तुम लोग ऑलरेडी पता होंगे. So mode of nutrition in case of animal we call it as a heterotrophs, and mode of nutrition in plants we call it as a autotrophs. Heterotrophs means
those living organism which cannot prepare food by their own, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो खाना के लिए ढूंढ के जाना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग ले लो, हम लोग का बॉडी खुद से खाना नहीं बना सकते, हम लोग बाहर में जाके दुकान में जाके ख़रीदना पड़ता है। अगर मीट चाहिए तो मीट खरीदते हैं, अगर जंगल में जाना है तो जंगल में जाके हम लोग हंटिंग करते हैं अगर मीट चाहिए तो क्या करते हैं? इन दैट केस हेटेरोट्रॉप वी सर्च फॉर फूड, ओके, वी कैनॉट प्रिपेयर, आवर बॉडी कैनॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। हम लोग को भूख लग रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को भूख लग रहा है तो हम लोग का बॉडी तो खुद से खाना नहीं बना सकते है ना, हम लोग का बॉडी का अंदर हम लोग को ढूंढना पड़ेगा, खाना ढूंढ के ला के बना के खाना पड़ता है। सो दैट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज ए हेटेरोट्रॉप। बट प्लांट्स में क्या होता है? दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। क्यों? प्लांट्स तो एक जगह से दूसरे जगह तक चल के नहीं जा सकते, अपना खाना नहीं बना सकते, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर, ठीक है। वी कॉल इट एज ए ऑटोट्रॉप। दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे आर कॉल्ड इट एज ए ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड with the help of sunlight and water. So we place all plants under autotrophs. Exception है plants में भी, जैसे फॉर पिक्चर प्लांट हो गया, इंसेक्टिवोरस प्लांट जितना भी है, ओके, पिक्चर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप, ये सब एक्सेप्शन होते हैं। वो लोग क्या कैप्चर करते हैं एनिमल्स को। पिक्चर प्लांट पता होंगे, सो दे हैव एन सम एक्सेप्शन ऑल्सो इन प्लांट्स। सो जस्ट फॉर नाउ रिमेंबर, those species which can prepare their own food we keep under autotroph, and those species which cannot prepare their own food we kept under heterotrophs. So these are the differences. Next thing, locomotion. Locomotion मतलब मूवमेंट, एक प्लेस से दूसरा प्लेस में जाना, उसको हम लोग बायोलॉजिकल में लोकोमोशन बोलते हैं। लोकोमोशन, मूवमेंट ऑफ द बॉडी, ओके, जो मूव कर सकते हैं अपना बॉडी एक जगह से दूसरा जगह तक, उसको हम लोग बायोलॉजी में लोकोमोशन बोलते हैं। तो एनिमल्स में होते हैं लोकोमोशन, दे कैन मूव, राइट, प्रेजेंट। बट इन केस ऑफ प्लांट्स दे कैन नॉट मूव, एक जगह से दूसरा जगह तक नहीं मूव कर सकते, ओके। सो लोकोमोशन एब्सेंट होते हैं। कि जब हम लोग बोलते हैं प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं रहते हैं, मूवमेंट नहीं कर सकते, ओके, some images might come in your mind. For example, sunflower, the flower rotates along with the sun, right? धूप जहाँ घूमते हैं, जहाँ जाते, so sunflower उसके साथ साथ घूमते हैं, okay? But we will not call it as a locomotion. Their movement is something, कुछ केमिकल्स होते हैं उसके अंदर में जो सन के साथ मूव करते हैं, ओके। लेकिन हम लोग उसको लोकोमोशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह में मूव करना। तो लोकोमोशन प्लांट्स में नहीं रहते, एनिमल्स में रहते हैं, ओके। वन मोर, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। रिस्पॉन्स टू स्टिमुली मतलब कॉन्शियसनेस। We are those species which are aware of their surrounding, okay, consciousness, right? Animals में रहते हैं consciousness, हम लोग ने पहले फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किए। अगर हम लोग को या कोई भी एनिमल्स को कुछ डेंजर सेंस होते, फील होते हैं, सपोज हम लोग जंगल में घूमने गए, सडनली हम लोग को टाइगर देखा वहाँ में, तो पहले हम लोग का दिमाग में क्या ख्याल आएगा? भागो, राइट? वी सेंस सम डेंजर, और दैट इज़ अ डेंजर, वी नीड टू रन नाउ. So that is a stimuli, okay? Consciousness that we have. All animals have that consciousness. But in case of plant, the response to stimuli are absent. उन लोग का बॉडी में नहीं रहते हैं consciousness. वो अपना जगह से हिल नहीं सकते. But तुम लोग एक एग्जाम्पल दे सकते हो. Touch me not plant. Have you seen touch me not plant? You might have seen, I guess.
when we place our hand in front of that plant, touch me not, okay? Mimosa pudica, the scientific name of touch me not plant. So when we try to place our hand in front of that plant, okay, leaf start fold, okay, but that is not consciousness, that is the vibration. कोई कोई प्लांट में एक केमिकल्स रहते हैं वो वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करते हैं. अगर व्हेन दे ऑब्जर्व वाइब्रेशन दे स्टार्ट्स टू फॉल इटसेल्फ. ओके सो सम प्लांट में ऐसा रहते हैं, बट दैट इज नॉट एक्चुअली ए कॉन्शियसनेस, दैट इज एक्चुअली ए वाइब्रेशन दैट इज रिसीव. व्हेन दे रिसीव सम काइंड ऑफ वाइब्रेशन दे लीफ इटसेल्फ फॉल्स. ओके, हम लोग उसको प्रोसेस को सिस्मोनेस्टी बोलते हैं, ये सब जानेंगे बाद में. ओके, सो इन केस ऑफ प्लांट्स जस्ट याद रखना कॉन्शियसनेस नहीं रहते हैं. इन केस ऑफ एनिमल्स कॉन्शियसनेस रहते हैं. सेल वॉल एनिमल में हमेशा एब्सेंट होंगे, प्लांट्स में सेल वॉल हमेशा प्रेजेंट होंगे. मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल में हमेशा हेटेरोट्रॉप होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. इन केस ऑफ प्लांट्स ऑटोट्रॉप होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर. लोकोमोशन एनिमल में रहते हैं, प्लांट्स में नहीं. ओके, सो दिस आर द थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर. And it was proposed by Carolus Linnaeus, Plantae and Animalia. So his classification were based on the characters that he observed from inside of the body as well as outside of the body. Okay, that's why this classification was accepted. But Aristotle classification was discarded. Why? Because it was not appropriate. Okay, so because his classification was based on whatever the characters that is observed from outside of the body. So coming to next classification, we have 6 kingdom system of classification, but we follow 5 kingdom system of classification. So we will come to one by one. This is our 2 kingdom. Now coming to 3rd kingdom system of classification. Okay, in next video lecture we will discuss.